All right, good morning, students. Today we're going to be learning History Chapter 9, Part 4, Heritage Management. Our objective for today is students will be able to take notes on libraries and archives. All right, libraries और archives पे हम लोग notes लेने वाले हैं. All right. So students, keep your pens and notebooks ready because you will have to take a lot of notes today. So what are we learning today? We are learning about libraries in India. उनके functions क्या है, कौन-कौन से libraries है, and archives in India. उनके functions क्या है, कौन-कौन से archives है. Alright, so students, as I said, keep your pen and notebook ready. First, listen to me explain on every slide, and then you pause the video, take down the notes, and then move on to the next part. Alright, so let's start with libraries in India. Now, functions and examples. What are first, let's understand the function of a library. What does a library do? A library, first point, the libraries are storehouse of knowledge and information. Alright, libraries जो होते हैं वो किस चीज का स्टोर हाउस होता है, किस चीज को स्टोर करता है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं. They perform various tasks such as collecting books, arranging them, conservation and preservation of those books, etc. सबसे मेन टास्क क्या है उनके कि बुक्स को कलेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं से कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. ऑलराइट, कंजर्वेशन एंड प्रेजर्वेशन ऑफ दोज बुक्स, उन बुक्स का ध्यान रखना, देखे कि उनका कवर ना सट जाए, उनके पेजेस फटे ना. ऑलराइट, एंड देयर आर मेनी अदर वेज टू कंजर्व एंड प्रिजर्व देम. ऑलराइट, to make a book available to read the moment it is requested is the main aim of library management. Library management नाम का एक subject है. Alright, उस subject में what's the main aim of library management according to that subject? It's to make a book available to read. Libraries किसके लिए होते हैं? सिर्फ उनके लिए जो libraries बनाते हैं? No, it is for everyone. Everyone can go to a library and read a book. So अगर किसी ने बुक मांगा और उस समय पे बुक नहीं मिल रहा है, then that means that library is not functioning very well. All right, and that's why the main aim of library management is to make a book available the moment it is requested. All right, request किया बुक का, उसने ढूंढा बुक निकाल के तुम्हें दे दिया. That is what library management is all about. The main aim of library management is all about. Now, the library at Takshashila University from 5th century BCE to 5th century CE, that is almost 1000 years, all right, is one of the oldest libraries in the world. All right, तक्षशिला इंडिया में तक्षशिला यूनिवर्सिटी नाम का एक यूनिवर्सिटी है. ऑल राइट, उसमें एक लाइब्रेरी है जहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है. दिस वाज द लाइब्रेरी, ऑल राइट, वेयर पीपल यूज्ड टू रीड, एंड दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड. ओके, कंटिन्यूइंग विद दिस, लाइब्रेरीज इन इंडिया, फंक्शंस एंड एग्जांपल्स. अगेन, अभी और कौन कौन से लाइब्रेरीज है पुराने, या और कौन से एग्जांपल्स है? द सरस्वत महल ग्रंथालय वॉज एस्टैब्लिश इन थंजावुर, तमिलनाडु, ड्यूरिंग द नायक डायनेस्टी इन द 16th सेंचुरी. सामने ऊपर वाले पिक्चर में यू कैन सी दैट्स द सरस्वत महल ग्रंथालय. ऑलराइट, एंड वो थंजावुर तमिलनाडु में एस्टैब्लिश किया गया 16th सेंचुरी में. दिस लाइब्रेरी वॉज कैप्चर्ड एंड एक्सपेंडेड बाय व्यंकोजी राजे भोसले एंड हिज सक्सेसर्स. ऑलराइट, व्यंकोजी राजा भोसले नाम का एक किंग था, उसने इस जगह को कैप्चर कर लिया, जगह के साथ साथ लाइब्रेरी को भी अपना बना लिया. ऑलराइट, एंड उसने क्या किया इस लाइब्रेरी के साथ, इसे एक्सपैंड कर दिया. एक्सपैंड करना यानी उसको बड़ा बनाना, उसको इम्प्रूव करना, उसमें और सारे बुक्स ले आना. ऑलराइट, एंड हिज सक्सेसर्स, मतलब सिर्फ उसी ने नहीं, उसके बेटे, उसके पोते, सब ने ये काम किया. ऑलराइट, नाउ सरफोजी राजे भोसले कंट्रीब्यूटेड टू इट द मोस्ट. उसका एक बेटा था या उसका एक पोता था, सरफोजी राजे भोसले. ऑलराइट, and he was the king who contributed to this library, the Saraswat Mahal Granthalaya, the most. In 1918, the library was renamed as the Thanjavur Maharaj Sarfoji Saraswati Mahal. Alright, मतलब महाराज का भी नाम सरस्वती महल में ऐड हो गया. ऑलराइट, तो द थंजावुर महाराज सरफोजी सरस्वती महल. ऑलराइट, थंजावुर का जो महाराज थे सरफोजी, ऑलराइट, उसके अंडर वो जो सरस्वती महल है वो पूरा नाम ऐसा एक बना दिया. राइट, एंड देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया. नेशनल लाइब्रेरी इन कोलकाता, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी इन दिल्ली, डेविड ससून लाइब्रेरी इन मुंबई आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी. नीचे वाले जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है दैट इज द डेविड ससून लाइब्रेरी इन मुंबई. नाउ स्टूडेंट्स, यू मे नाउ पॉज द वीडियो. पीछे वाले जो नोट्स है और ये वाले जो नोट्स है लाइब्रेरीज के बारे में तुम लिखना शुरू कर सकते हो. राइट, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. The next part is archives in India. All right. Now, what are some functions and examples of archives in India? Now, पहले functions के बारे में देख लेते हैं. What are archives? Archives are similar to libraries in many ways, from functions to its management. All right. Archives और libraries में ज़्यादा फर्क नहीं है. All right. Preserving documents in their original condition,
creating indexes and creating systems of accurate retrieval of documents are some functions of an archive. Preserving documents in their original condition, जैसे लाइब्रेरी का भी काम है वैसा आर्काइव का भी काम है. Creating indexes, indexes का मतलब क्या है? क्रिएटिंग क्लासिफिकेशन फॉर एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट. ऑलराइट, ये डॉक्यूमेंट कौन से टॉपिक के अंदर जाएगा, ये डॉक्यूमेंट कौन से टॉपिक के अंदर जाएगा, ये डॉक्यूमेंट कौन से टॉपिक के अंदर जाएगा. क्रिएटिंग इंडेक्सेस. ऑलराइट, एंड क्रिएटिंग सिस्टम्स ऑफ एक्यूरेट रिट्रीवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स. एक्यूरेट रिट्रीवल का मतलब क्या है? एक्यूरेट रिट्रीवल का मतलब है whenever I want that document I can easily find it, so I'll create a system for it. शायद मैं कंप्यूटर्स का यूज करूँ, शायद मैं बुक्स का एक सिस्टम यूज करूँ. ऑलराइट, आजकल सभी लोग कंप्यूटर्स ही यूज करते हैं बिकॉज कंप्यूटर से इजी हो जाता है. ऑलराइट, एंड दीज आर सम फंक्शन ऑफ एन आर्काइव. ऑलराइट, नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ लाइब्रेरी एंड अ आर्काइव? यू मस्ट बी वंडरिंग. ऑलराइट, लाइब्रेरी में जो बुक्स होते हैं वो पब्लिश किए हुए बुक्स है. ऑलराइट, मतलब किसी ने लिखे हैं. ऑलराइट, एंड लिख के पब्लिश किया. पब्लिश यानी मेक इट अवेलेबल फॉर पब्लिक रीडिंग. ऑलराइट, लेकिन आर्काइव जो होते हैं वो कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करती है. ऑलराइट, जरूरी नहीं कि उसको पब्लिक रीडिंग के लिए बनाया गया हो या ना बनाया गया हो. कोई भी डॉक्यूमेंट हो, इवन इफ इट्स अ डायरी ऑफ अ वेरी पर्सनल पर्सन जो अभी गुजर चुके हैं, ऑफ अ वेरी फेमस पर्सन, then that diary, since it's not published, it will be kept in an archive. लाइब्रेरी में सिर्फ पब्लिश किए हुए किताबें या न्यूज़पेपर्स रखे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, लेकिन आर्काइव्स में किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है. ऑलराइट, नाउ थर्ड पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम आर्काइव्स आर सेड टू बी वेरी रिलायबल. ऑलराइट, एंड दिस इज व्हाई डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम आर्काइव्स आर वेरी रिलायबल. बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, उनमें बहुत सारा रिलायबल यानी बहुत ही पक्का इंफॉर्मेशन है. ऑलराइट, क्यों? क्योंकि इनको पब्लिश नहीं किया गया है. ऑलराइट, ये लोगों के लिए बनाए नहीं गए, ये खुद के लिए बनाए गए. मतलब इनमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा से ज्यादा सच है, किसी ने देख के उसको लिखा है. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम आर्काइव्स आर सेड टू बी वेरी रिलायबल. नाउ द फर्स्ट आर्काइव्स ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1891 सीई इन कोलकाता. इट इज नोन एज द इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट. अभी पहला आर्काइव कहाँ पे बना था? 1891 सीई यानी कॉमन एरा में इन कोलकाता. इट इज नोन एज द इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट. उस समय पे इट वाज नोन एज द इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट एंड इट वाज शिफ्टेड टू दिल्ली इन 1911. दिल्ली में वो 1911 में शिफ्ट हो गया दूसरे बिल्डिंग में. ऑलराइट, वहाँ का सारा सामान दिल्ली में शिफ्ट किया गया एंड दिस इज नोन एज द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया टुडे. आजकल इसको इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, विच इज शोन इन द पिक्चर राइट हियर. ऑलराइट, now in 1998 president KR Narayan opened the archives to the public. 1998 में KR नारायण ने क्या किया? ये जो आर्काइव्स है, अभी आर्काइव्स पब्लिक के लिए नहीं है. करेक्ट, आई टोल्ड यू ऑलरेडी. लाइब्रेरी जो है पब्लिक के लिए, जो भी पब्लिश्ड बुक्स है उसके लिए है, लेकिन आर्काइव्स वैसे नहीं है. लेकिन 1998 में KR नारायण ने पब्लिक के लिए ये आर्काइव्स खोले. ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट आर्काइव जो है वो भी देश का ही इंफॉर्मेशन है, लोगों का ही इंफॉर्मेशन है. वाई शुड वी कीप इट प्राइवेट? ऑलराइट, so he opened it to the public. It has documents preserved and maintained in a chronological order from 1748. 17वीं सदी से 17वीं-18वीं सदी से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किए गए. इमेजिन 200, 300, 400 साल का मेहनत. ऑलराइट, 400 साल में सारे के सारे बुक्स एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है. इट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स इन वेरियस लैंग्वेजेस. NMIN नहीं, it includes records in various languages such as Urdu, Arabic, Persian, etc. Alright, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में भी डॉक्यूमेंट्स है. इन इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स वी वर नॉट दी ओनली वंस राइटिंग. बहुत सारे ट्रैवलर्स होते थे, अरबी लोग होते थे, पर्शियन लोग होते थे. ऑलराइट, एंड दे वुड कॉन्स्टेंटली ट्रैवल टू इंडिया एंड राइट अबाउट देयर ट्रैवल्स. तो ये सारे जो राइटिंग्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे गए. एंड दीज ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स इंडिया में भी मिले गए विच आर देन स्टोर्ड इन दीज आर्काइव्स. ऑलराइट, नाउ गवर्नमेंट्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव देयर ओन आर्काइव. सारे गवर्नमेंट्स के पास अपने अपने आर्काइव्स होते हैं हर एक स्टेट में. ऑलराइट, हर एक स्टेट में अपने अपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पब्लिश नहीं हुए पब्लिक के लिए, बट दे आर गुड पीसेज ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. ऑलराइट, सो every state has its own archives. The archives of Maharashtra state government is located in Mumbai, Pune, Kolhapur, Aurangabad and Nagpur. महाराष्ट्र में कहाँ मिल जाते तुम्हें ये आर्काइव्स? मुंबई में, पुणे में, कोल्हापुर, औरंगाबाद एंड नागपुर. Now you can see the picture below. It's of Elphinstone College in Mumbai. Alright, मुंबई में Elphinstone College नाम का जगह है. Alright, and उस जगह पे there's a department of archives. मतलब ऐसे महाराष्ट्र में जितने भी historical documents है जो लोगों के लिए, पब्लिक के लिए पब्लिश नहीं हुए, वो वहाँ पे तुम्हें मिल सकते हैं. Alright,
and this is just an example of all the archives that are in India. With that, students, we have reached the end of our explanation. Nothing too serious here. You just write down the notes. All right, जितने भी notes अभी मैंने पीछे किए हैं, all right, just pause and write them down in your notebooks. तुम्हारा writing का practice हो जाएगा. And answer this question for today. Explain in 50 to 60 words which tasks there's a small spelling mistake here. Which tasks are important in archive management? All right. कौन कौन से टास्क है जो आर्काइव मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है? अभी मैंने नोट्स में तो दिए कि फंक्शंस ऑफ आर्काइव्स क्या है, लेकिन go back to your textbook also and find some extra information on it and then make your answer big. 50 to 60 words मतलब बड़ा आंसर होना चाहिए. Alright, that means at least 6 to 8 points. Alright, so make sure that you are answering this question in at least 6 to 8 points. Students, with that we have reached the end of our lecture. Thank you so much for learning. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. You can send me a text, you can send me a voice note, and I will answer your question. Have a nice day, all of you.